and in any case not later than 10:30 a.m. on Saturday 9/4/2022 to conduct the business of the house as per the orders of the day that had been issued for 3/4/2022. اور کرائسس ہو سکتا ہے. اور اگر وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن تو بڑے چل میں بیٹھی ہے, پوچھے نا شاید خاقان نواز سے حالات کیسے خراب ہیں. اپوزیشن کو اندازہ ہے, میں ایک بات بتا دوں کہ اپوزیشن کو بہت اندازہ ہے. کتنے ریلیکس بیٹھے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں حالات خراب ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ اتنے حالات اچھے ہیں. نہ میں مغرب کو جانتا ہوں, کلمہ مجھے والدہ نے بڑی بچپن میں سکھا دیا تھا. مطلب یہ ہے بڑے اختیارات ہیں وزیر اعظم کے پاس, بہت اختیارات ہیں اسپیکر کے پاس, صدر کے پاس بھی اختیارات ہیں. وہ اختیارات آئین سے آتے ہیں, یہ آئین نہیں توڑ سکتا. معذرت کے ساتھ آئین بڑا واضح ہے, وقار کے ساتھ. کل ووٹنگ ہو, ملک میں پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم عوام کے ووٹ سے گھر جائے, اس میں بھی وقار ہے, اور ملک کا نظام آگے چلے. آج کسی کو ملک کی پرواہ ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ ایک ووٹ سے آئے تھے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں بیرونی سازش, وہ سنگل لارجسٹ میجورٹی پارٹی ہے. معذرت چاہتا ہوں, بیرونی سازش, وزیر اعظم ملک کا بیرونی سازش آج ایک چھوٹا سا کوشچن ایڈ کر دوں. جی, یہ حکومت آئی اتحادیوں کو ساتھ ملا کے, آج بھی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. 84, 55, پھر 5, 7, 6, 7 وہ سارے ایک سائڈ پہ آ گئے. تو کتنی مضبوط یہ حکومت ہوگی, اور اس کی کیا گارنٹی ہوگی کہ یہ کل کو کوئی اور سازش ہوتی ہے تو یہ دوسری سائڈ نہیں چلے جاتا؟ سازش یہاں کوئی نہیں ہے. اچھا, یہاں سازش عوام نے کی ہے. عوام تنگ ہے, عوام تنگ ہے, عوام تنگ ہے. اور آپ دیکھیں گے یہ حکومت جتنا عرصہ بھی رہے عمران خان سے 10 گنا زیادہ ڈیلیور کرے گی, 10 گنا زیادہ. وہ ایک ناکام حکومت تھی, ناکام ہو چکی تھی. آج ملک کو ضرورت ہے کہ تھوڑا اس کو آگے بڑھایا جائے, مسائل کو حل کیا جائے. لیکن عباس صاحب جو گریس کی آپ نے بات کی نا, یہ آج تقریر میں بھی یہ بات کی گئی. دیکھیں یہ جو ہوٹل میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے لاہور کے اندر بھی, پھر اس کے علاوہ جو وہ منحرفین تھے, آبویسلی ان سے آپ ووٹنگ کرائیں یا نہ کروائیں, لیکن آبویسلی ان کو ڈسپلے کیا اور آپ ووٹنگ اتحادیوں سے ہی کرائیں گے. یہ بھی تو سر یہ گریس یہ بھی تو ہوگی نا, تھوڑی گریس تو اپوزیشن کو بھی دکھانی ہے نا. عدم اعتماد کا حصہ ہے. اللہ کا کرم ہے 35 سال سے سیاست میں ہوں, میں نے لوگوں کو پیسے بھی مانگتے دیکھا ہے, عہدے بھی مانگتے دیکھا ہے, جماعتوں کو دیکھا ہے. پہلی دفعہ کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی. جو آئے گا اس کا سیاسی تسلسل برقرار رکھنا میرا کام ہے. میں گاڑیاں لے کر نہیں پھر رہا, 10 کروڑ فی ایم پی اے نہیں خرید رہا. میں چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بلا کر نہیں کہہ رہا کہ اٹھاؤ ایم پی ایس کو. دیکھیں ووٹ ہو رہا ہے, خدا حافظ. گریس تو پھر نہ ہوئی نا جو آپ گریس کی تعصب سے کر رہے ہیں, میں کہہ رہا سے نقب لگایا جا رہا ہے. آج مجھے فخر ہے اس بات کا گریس تو نہ ہوئی کہ 10 کروڑ ایم پی اے کو, 2.5 کروڑ اس کے ہینڈلر کو فری آفر ہے, کوئی لینے کو تیار نہیں ہے. یہ آج ملک کی سیاست کا شاہد صاحب یہ جو انہوں نے نیریٹو, وہ جو نیریٹو بلڈ کیا ہے وزیر اعظم نے, آپ لوگ آپ اناؤنس کریں آج ہم جو لوگ ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں کسی کو ٹکٹ نہیں دیں. کیوں اناؤنس کریں؟ وہ ہمارے ساتھ آ رہے, اگر ہماری جماعت سمجھتی ہے کہ اللہ واسطے تھوڑی آ رہے ہیں, کچھ دے رہے ہیں تو آ رہے ہیں, خدمت کے لیے تو نہیں آ رہے. تو ہو رہی ہے. وہ اقتدار چھوڑ کر آ رہے ہیں, وہ عمران خان کی پارٹی چھوڑ کر آ رہے ہیں, حکومت چھوڑ کے آ رہے ہیں, اربوں روپے کی آفریں چھوڑ کے آ رہے ہیں. اقتدار میں آ رہے ہیں, دوبارہ اقتدار میں آپ کے ساتھ آ رہے ہیں. سیاستدان کی ان کو بھی پتا ہے سیاستدان کو کیا چاہیے اگلی سیٹ. یہ خود وہ تو عمران خان بھی دے رہا تھا, سر ایک بات موجود تھا. سر آپ کو لگتا ہے ایک سیگمنٹ دیکھیں, آپ لوگوں نے پچھلے الیکشن سے پہلے بھائی صاحب کیمپین ساری یہ بنائی تھی کہ ہمارے خلاف ایک کیمپین ہو گئی ہے اور لوگ ہمارے توڑ دیے گئے, اور یہ ہارس ٹریڈنگ بڑی بری چیز ہے اور لوٹوں کی جگہ, اور یہ لوٹے ہوتے گئے. میں آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں, آپ کی پارٹی والے یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں. آج ایک آدمی کہتا ہے وہ مجھ سے غلطی ہوئی, میں معافی مانگتا ہوں, عوام سے معافی مانگتا ہوں, اپنے ووٹر سے معافی مانگتا ہوں, پاکستان کے عوام سے, کہ میں اس ناکام حکومت کے ساتھ گیا جس نے عوام کو مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا. اس ناکام حکومت کے خلاف ووٹ ڈالو تو ہم بھی عزت کریں گے. بالکل. سر ایک بات تو ایسے لوگوں میں مجھے فخر ہے, سر ایک بات جنہوں نے نہ پیسے منگائے, نہ عہدے مانگے, اقتدار چھوڑ کر آئے ہیں, ان پہ آپ فخر کرتے ہیں. سر ایک بات تو بتائیں, یہ جن لوگوں پہ آپ فخر کر رہے ہیں, کیا پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرشپ اتنی ہی خوفزدہ ہے کہ یہ 30 لوٹے جو ہیں یہ جب چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرتے ہیں, جب چاہتے ہیں مسلم لیگ نواز کو بلیک میل کرتے ہیں, جب چاہتے ہیں یہ
काफ लीग को ब्लैकमेल करते हैं जब आप ब्लैकमेल ना हो सर सुने ना, आप आप हो रहे blackmail ना हैं, हो। अब नहीं हो रहे नहीं सर आप हो रहे अब नहीं हो रहे। इन लोटों को आप सीने से blackmail लगा नहीं रहे होते। हैं। मैंने आपको बहुत आप पहले बताया था एक दफा- 22 लोग इस जमात को छोड़ना चाहते हैं। मैंने इनके प्रोग्राम में 3 दफा कहा है 22 लोग छोड़ना चाहते हैं। वो तंग है इमरान खान की और उसकी जमात की उसकी परफॉर्मेंस से। सर वो छोड़ना चाहते हैं वो आ गए। सर, ये- बात ऐसे ही होता है। सर काफ लीग में क्या आप था, देखते हैं, आप- क्या आप- बात अब करते देखिए हैं रोने धोने का फायदा नहीं है। सर रोने एक ड्राइवर है रोटे की रोने बात- धोने सर, सारा हम दिन सिर्फ रोते रहे कोई फर्क नहीं वो जो पड़ेगा। लफ्ज ग्रेस था ना सर, उसकी थोड़ी हाँ, तशरीह, वो हाँ, सिलेक्टिव ग्रेस वो 22 लोग ना भी ना वोट को नहीं, इज्जत नहीं, देनी है, वो 22 हाँ, वोट ना भी वोट वोट की दें, इज्जत वाला इमरान नारा खान भी क्या? अक्सरियत खो चुका है। सर, वो 22 लोग ना भी वोट दें, एक और आज admission कर लें। 177 आदमी उसके खिलाफ वोट देगा। आज एक और एडमिशन भी कर लें कि वोट को इज्जत देना भी जन्म में गया है। हमने नहीं इससे बड़ी देनी, वोट हमें को- हुकूमत इससे चाहिए, बड़ी बस वोट खत्म। को क्या इज्जत है कि आज वोट की ताकत से इमरान खान घर जा रहे हैं, जो पूरे पाकिस्तान की ख्वाहिश थी। ये वोट की ताकत है, ये पीडीएम की सक्सेस है, ये अपोजिशन की सक्सेस है। वोट से इसको घर भाई भेजना साहब यहाँ बैठ के आपने कहा था इस जगह उस कुर्सी में कि अगर 2022 में अदम एतमाद आई, ये हुकूमत गई और हम हुकूमत में आए तो उसकी वजह क्या होगी, आपको याद है ना? जी बिल्कुल। मैं आज भी कहता हूं बैसाखियां हटी है, इमरान खान गायब। बैसाखियों के सहारे रहा है, तलवार की नोक पे आया था, तलवार की नोक पे जाएगा। अवाम की वोट से अगर आया था तो अवाम की वोट से जा रहा है। बैसाखी हटी है, छुट्टी हो गई। सर जाने का किसी को मसला नहीं, मैं एक चीज कर दूं, नहीं मसला है ना, आती जाए हैं, खुदा हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें चली जाती हैं। जी यहीं से जब मियां साहब को नहीं अदालतों ने निकाला था तो आप लोग रोला डाल रहे थे। नहीं, हमने कुछ और अदालत किया था। वाले- क्या बात कर रहे हैं? अल्लाहु अकबर को खुदा ला हौला वला उसी कुव्वता बात इल्ला ना बिल्लाह करें, अल-अली ये अल-अज़ीम। करो। खुदा साहब ने एक ला हौला वला घंटे के अंदर कुव्वता। 4, उन्होंने कहा ये नहीं और सर क्या बात करते तस्वीर हैं? तो ये भी कर देगा। लिया देगा। मसला ये है क्या कि भाई रोला ये नहीं, रोला नहीं आईन डाला। जो आदमी क्या आईन मुझे तोड़े, क्यों निकाला, रोला जो नहीं डाला? आदमी आईन तोड़े उस अपने आप को वक्त बचाने के जिनको लिए आपने निकाला जो- साजिशें करके, आपने उनके भी नाम ले दिए सारों के कि इनको क्यों निकाला, बेचारों को का वक्त पूरा करने देते। मेरे भाई आप रोना धोना क्यों डाल रहे हैं? हम नहीं डाल रहे आप सर, आप जाए ना, भाई, अवाम politics को अवाम ने ठीक आपको करना रिजेक्ट चाहते कर दी है। आप सारे भी आप सौ इस- का समान नजर आता है, नहीं, सर, परेशानी नहीं, है। सियासत को आईन ठीक करने आईन के पीछे रह गया है, आईन की भी फिक्र करें। आइन वाकई पीछे रह गए शायद आइन- साहब। वो आज जिक्र हुआ एनआरओ 2 है, ये क्या जी। एनआरओ 1 जो था, जिन प्लेयर्स ने एनआरओ 1 किया था उन्हीं ने एनआरओ 2 किया है, और जो शहबाज शरीफ साहब के मैंने जो जिंदगी मुकदमे में उनका ना क्या होगा? एनआरओ की कभी बात की है, मुझ पे मुकदमे बने हुए हैं। मुझे परसों भी जज ने कहा जी आप पे मुकदमा है, कहा जी आप मुकदमा चलाएं। मैं आज भी कहता हूँ जो देखिए, शहबाज शरीफ के मैं- मुकदमे उनका अशरफ क्या साहब status होगा? रोना धोना छोड़ दें। रोने के बाद शहबाज गुजर शरीफ गया के है। मुकदमे इमरान खत्म होंगे खान इसके बाद। की वोटें नहीं है, अक्सरियत नहीं है, खुदा हाफिज घर जाओ भाई। जा रहे हैं। अच्छा वो तो जा रहे हैं ना, कितने तक कब जा रहे हैं? जी, ये जब भी होगा, ये आदमी रोता वोट धोता हुआ जाएगा। 9 तकरीरें कर चुका है, आज भी उसे तकरीर की है, आखिर में फिर रो के जा रहे हैं। शायद साहब ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि तारीख उन किरदारों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने आज इस ये सारे सब प्रोसेस एक में एक हिस्सा लिया एक है। एक दुरुस्त बात की है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। तारीख उन किरदारों तारीख को माफ उन नहीं करेगी लोगों जो को सारे जिन्होंने अवाम को तकलीफ दी है, इस मुल्क का आईन तोड़ा है, इस मुल्क के हर इखलाकी जमहूरी पार्लिमानी कदर की नफी की है, कभी माफ नहीं करेगी। बट उनकी मुराद ऑपोजिशन है। उनकी मुराद होगी, मैं तो इंसाफ की बात कर रहा हूं ना, मैं तारीख की बात कर रहा हूं। हमने भी बड़ी तारीख देखी है। आज मुशर्रफ को तारीख याद रखती है, आज जियाउल को तारीख याद रखती है। तो ज़ियाउल हक साहब के साथ कौन हमारी था? तो तारीख ही है। ज़ियाउल हक साहब के साथ कौन था? जियाउल के साथ मुझे क्या पता कौन। नहीं आपके वाले साहब थे, क्या बात करते चले हैं? ये बात भी कर लें। हाँ जी। मैं बिल्कुल बात कर लें। जी। जी आपके वाले साहब मेरे थे? वालिद साहब ने जियाउल हक के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। नहीं, आपके मेरे वाले वालिद ने एक दिन भी खाकान अब्बासी साहब खाकान अब्बासी ज़ियाउल साहब हक साहब के साथ नहीं थे? कभी भी नहीं थी, एक दिन नहीं थी। कर लो बात। आप तारीख दुरुस्त कर लें, आप ये बातें भूल जाते हैं। मेरे वालिद ने कमाल। जिंदगी में, मुझे इस बात का फख्र है सर ये कि जुनेजो हमने कभी भी जुनेजो साहब हमने की कभी भी किसी आमिर का साथ सर नहीं दिया, जुनेजो मुकाबला साहब किया। ला हौला वला कुव्वता, ये सारी तारीख ही बदल तारीख बदल देना, आप ले आए तारीख को। मैं क्या करूं? आप बता दें, मेरे वालिद ने कभी बड़े जियाउल खाकान हक के अब्बासी- साथ कोई ओहदा लिया हो, खाकान मजलिस अब्बासी- शूरा में रहा हो, बताए ना। तो सर कहाँ थे वो? कहाँ थे, अपना कारोबार करते थे। जुनेजो साहब के साथ क्या थे? वजीर थे, इलेक्शन लड़के थे। आए थे। वो कौन जियाउल सी हक थी? के वो regime कौन- वजीर इंफॉर्मेशन के वो खिलाफ regime- जीत वो कर आए regime थे। कौन सी थी? जी वो regime कौन सी थी? इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। मोहम्मद खान जितने जुनेजो, वोट- जी इलेक्टेड आदमी। नवाज शरीफ साहब, आप भूल जाते हैं, नवाज शरीफ साहब, इलेक्टेड लोग, शहबाज शरीफ साहब, इलेक्टेड लोग थे। सारे ये जो आज यहाँ असेंबली में बैठे सारे वही थे, सारे। सारे। माशाल्लाह। 85 में इलेक्शन नहीं हुए थे, हाँ तो 85 में किसने करवाए थे? एक रजीम के तहत हुए थे। कौन से किसने करवाए थे? फ्री फेयर इलेक्शन हुए थे, सर किसने करवाए थे? आइन के तहत हुए थे, आइन के किसने तहत कर हुए नहीं आइन तो सब था ही नहीं।
क्यों नहीं था? 85 में कौन सा आइन था? उसको सेंटिफाई किया No, हुआ सर, था। आइन कौन सा मैं था? माजरत से चाहता हूँ, जरा आप तारीख पढ़ सर, लें। 85 में आइन आप कौन सा तारीख था? पढ़ ले, आप तारीख पढ़ ले। सर 85 में आइन आप कौन सा तारीख था? पढ़ ले, सुप्रीम कोर्ट ने 88 क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सर कहा सुनिए, था? सर सुनिए। आपने मेरे वाले साहब का नाम लिया सर, है। 85 मैं- आप जरा इसकी माफी मांगे। सर, मेरे क्यों वाले साहब ने कभी किसी आमिर का सर साथ नहीं लिया। 85 माफी में- मांगे मेरे सर, भाई। एक मिनट सर, अगर शर्म हया है तो माफी मांगो। सर शर्म हया आप में भी होनी आपने चाहिए। होनी चाहिए। आप में आपने भी। नाम लिया है, मैं जवाब सर दे मैं रहा हूं। बता रहा हूँ इसलिए 85 चले हाँ, आगे चलो, चलते चलो, हैं, चलो, आगे चलते हैं, Let's थोड़ा see सा। the केसेस का क्या बनेगा ये कौन टॉपिक जो सारे चल रहे हैं और खास जितने तौर से रूट शहबाज पे मुझ शरीफ पे डरते चलाएं। आपका केस जो है शहबाज शरीफ के केस का क्या वो NRO 2 जो वजीर आजम कह रहे हैं उसका हिस्सा है? और यार शहबाज शरीफ के केस बनाए ना, 3.5 साल हुए आपसे शहबाज शरीफ का केस। छोड़े केसों को, बनाए चलाए केस। मैं आज भी कहता हूँ एज नून लीग के एज केस प्राइम चलाए। मिनिस्टर उनका केस चल सकेगा? बिल्कुल चल सके। कैसे? हमारे सदर पे केस चलता रहा टेररिज्म का, कौन सा? अभी बरी हुए। तो 2 हफ्ते प्रोसिक्यूटर पहले ने जाके कहा ना जी ऐसा 2 कुछ हफ्ते नहीं पहले हुआ। बरी हुए। छोड़े यार इन बातों को। अगर कन्विक्ट होते फारिग हो जाएंगे, नया प्राइम मिनिस्टर आ जाए। तो प्रोसिक्यूशन यानी फुल सपोर्ट करेगी? किसको? जो आपने सदर की मिसाल दी, सदर साहब को तो बिल्कुल सपोर्ट किया प्रोसिक्यूट करें ना, प्रोसिक्यूट करें। 1.25 साल आपने जेल में प्रोसिक्यूटर रखा तो फिर है, स्टेट 1.25 प्रोसिक्यूटर साल है। जेल में रखा है, प्रोसिक्यूट करें ना। शायद साहब ये बताइएगा कि अगर अब वो प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, कल क्या होता है, क्योंकि पैरा 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। कल वोटिंग होती है नहीं होती, मामला बहुत आगे तक जाना है अगर वो रोकते हैं। पैरा 9 पढ़ लेंगे जरा, उसमें है क्या? जी मेरे पास उसको पड़ा जरा हुआ गौर था, से मैं पढ़ लें। दोबारा निकाल लेता हूँ। डिसीजन अब बड़ा क्लियर है, कोई भाम है तो छोड़े इन बातों को। अच्छा, शायद सुप्रीम सरकार कोर्ट साहब के कल को मामलात में- पार्लियामेंट ये अज्यूम करके सुप्रीम कोर्ट को कह सकती है, एक लीगल सवाल है, मैं आज लॉयर से ही पूछता रहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के मुअज्जिज जज साहिबान रात 12 गए? बजे अदालत लगाएंगे और फलां लीजिएगा वो केसेस का फैसला जजमेंट। करेंगे। पार्लियामेंट ये कह सकती है सुप्रीम कोर्ट को? हमारे आइन में सेपरेशन ऑफ पावर्स है। आइन में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, लेकिन जो आइन तोड़ता है उसको डायरेक्शन दे सकती है। ओके, आइन के अंदर जो आर्टिकल 69 है, आपने यकीनन फैसला पढ़ा होगा, वो ब्रीच कैसे किया? वो कहीं फैसले में आपको नजर आया? मैं लीगल जानना चाह रहा हूँ, बिंग एक्स प्राइम आइन मिनिस्टर। आइन बड़ा क्लियर है कि आपको 7 डेज में वोट कराना है। आइन बड़ा क्लियर है, आपने नहीं कराया। आपने जो पार्लियामान में हुआ है ना, मैं आर्टिकल 6 की बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात उसके तरफ जाती है। यानी कि ये उसके बाद आर्टिकल 6 के मुकदमे बने। आर्टिकल 6 के मुकदमे बनने चाहिए, मैं आर्टिकल 6 के हक में नहीं हूं, लेकिन इस बात की हकीकत अवाम के सामने आनी चाहिए कि इतवार को इस मुल्क के अंदर क्या हुआ। और इसके बाद गिरफ्तारियां भी होंगी, सर, इमरान खान और उनकी काबीना भी गिरफ्तार होगी। ये गिरफ्तारी हमने नहीं करनी, ये गिरफ्तारी की बार नहीं सह सकते, एक दिन गिरफ्तारी नहीं सहेंगे। ये प्लान गिरफ्तारी हमने सह ली है ना, हमने सह ली ये है ना, discussion हमने नहीं सह है। ली है। शायद साहब डिस्कशन आज तक 35 साल में नवाज शरीफ साहब को हमने किसी की गिरफ्तारी, ECL, कोई घटिया बात करते हुए नहीं सुना, पैराग्राफ 9 जो हमने इस आदमी से मैंने सुना। मंगवाया वो जजमेंट। ठीक है जी, मैंने अगला प्रोग्राम। पैराग्राफ 9 पढ़ पैराग्राफ 9 में ये बकायदा paragraph 9 मेरे सामने आ गया। The speaker is under a duty to summon and hold a sitting of the assembly in the present session and shall do immediately and in any case not later than 10:30 a.m. on Saturday 9/4/2022 to conduct the business of the house as per the orders of the day that had been issued for 3/4/2022.